Well, hello students, welcome to JJ class of learning science, and this is our part 6 of chapter number 2, acid, base and salt. In previous part we have discussed about how we can obtain caustic soda, and that is sodium hydroxide, and a bleaching powder from a common salt, that is sodium chloride. In this part we are going to discuss about how we can obtain baking soda, how we can obtain washing soda, and how we can obtain baking powder from baking soda, and all about P.O.P, Plaster of Paris. Okay, let's begin without wasting any more time, and this is very important part. Okay, don't skip a minute. Okay, so let's begin with baking soda. बेकिंग सोडा हम लोगों ने मतलब इसका नाम बहुत सुना होगा, मतलब आज इसको मतलब जानते हैं, मतलब इसको कैसे बनता कैसे है और इससे मतलब यूजेस क्या क्या होता है, मतलब लेट्स देखते हैं. ओके, तो while we are talking about the baking soda, the process by which मतलब baking soda is produced is called Solvay process. It's called Solvay process. The process by which we derive what baking soda is called Solvay process. Name the process. Solvay process. Solvay process कैसे किया जाता है? Very simple. We are taking brine. We are taking brine. आई brine कौन? बंदा कौन है? बंदा कोई नहीं है, मतलब the aqueous solution of sodium chloride. Aqueous solution of brine मतलब किसी का नाम लगता है, तो brine कौन है? मतलब sodium chloride का aqueous solution. Aqueous solution of sodium chloride is called brine. We are taking brine. We are taking brine. We are taking brine, and if we mix brine with carbon dioxide and NH3, and NH3 known by ammonia, carbon dioxide and what? Ammonia. If we mix brine with carbon dioxide and ammonia, we will get NaHCO3 and NH4Cl. This is called sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate, and it is also known by, this is our product. वो मतलब हम लोगों का बंदा है, गौर से देखो इस चेहरे को. ओके, NaHCO3 इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा बोलते हैं. यही हम लोगों का मतलब चाहिए हम लोगों को. ओके, तो हाउ वी आर गेटिंग ब्राइन mixture of aqueous solution of sodium chloride with carbon dioxide with ammonia. Reaction is happening and forming what? NaHCO3, sodium hydrogen carbonate and ammonium chloride. Ammonium chloride इसको ही बोलते हैं, मतलब ये हम लोग को क्या बोलते हैं, मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग बेकिंग सोडा. तो हाउ वी कैन ऑब्टेन बेकिंग सोडा? तो ब्राइन with carbon dioxide with ammonia gives us what? NaHCO3 and NH4Cl. That is, we have to write sodium hydrogen carbonate and ammonia. Sodium hydrogen carbonate is called brine. How we can write in simpler way? Sodium chloride, the aqueous solution of sodium chloride with carbon dioxide and ammonia reacts and forms what? Sodium hydrogen carbonate and NH4Cl. Sodium hydrogen carbonate is called baking soda. समझ में आया इतना? Now question may come like this: how we can obtain this? From where this we are getting carbon dioxide? तो carbon dioxide is extracting from CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट. अच्छे से समझना चाहिए, मतलब कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, मतलब अच्छे से समझो. ये वाला कहाँ से आ रहा है? CaCO3. कैसे आ रहा है? If we are breaking what? If thermal decomposition of CaCO3, अगर CaC को हम लोगों ने हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज किया तो क्या बनेगा? CaO plus what? CO2. This CO2 we are using. अभी मतलब क्वेश्चन आंसर, मतलब where this calcium oxide is going? This calcium oxide is mixing with this NH4Cl and releasing ammonia. Releasing what? Ammonia. And this process is called Hubbard process. समझ में आया होगा? मतलब कहाँ से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मल डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ हीट अगर डिकम्पोज किया तो क्या बनेगा? CaO and CO2. दिस CO2 इज रिएक्टिंग विद द NH4Cl इज फॉर्मिंग व्हाट? अमोनिया. मतलब ये अमोनिया मतलब हम लोग जो दे रहे हैं उसको हम लोग वापस ले सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ दिस कैल्शियम ऑक्साइड विद दिस NH4Cl है. हम लोग क्या निकल सकते हैं? हम लोगों को अमोनिया निकल सकते हैं. समझ में आया होगा? तो दिस इज ऑल अबाउट बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा कैसे बनता है? देखो ऐसे बनता है, रिएक्टिंग विद द सोडियम क्लोराइड विद वाटर प्लस व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस व्हाट? हम लोगों को अमोनिया. द रिएक्शन हैपन फॉर्म्स दिस. ओके, कभी पूछा जाता है व्हाट इज द प्रोसेस? सॉल्वे प्रोसेस. अभी मतलब इसको क्या बोल, इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल. सोडियम क्या बोलते इसको? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, बोल सकते हैं. सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं. इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और कॉमन नेम बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा.
समझ में आया होगा, इतना अच्छे से समझ आया होगा। ओके, अब बेकिंग सोडा का कुछ प्रॉपर्टी होता है, इसको मतलब हम लोग मतलब एज ए मतलब पाउडर की तरह इसको मिल सकता है। इट पार्शियली डिजॉल्व्स इन वाटर, वाटर में क्या हो जाता है, डिजॉल्व होता है। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज दैट when we heat NaHCO, that is when we are heating baking soda, if baking soda is heated, it forms sodium carbon Na2CO3 plus carbon dioxide plus water, water. Important, but what happens when baking soda is heated? When baking soda is heated, it forms sodium carbonate plus carbon dioxide plus water. Again if you are heating more, this is forming sodium oxide and carbon dioxide. समझ में आना चाहिए, किसी भी मतलब कोई जगह छूटना नहीं चाहिए। अगर हम लोगों को बेकिंग सोडा को हीट किया तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड वाटर बनेगा। अगेन इफ यू आर हीटिंग दिस सोडियम कार्बोनेट, इट इज रिलीजिंग सोडियम ऑक्साइड एंड व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। यहाँ पे एनहाइड्रन, तो यहाँ पे इसके पास कोई वाटर नहीं है तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं सोडा एच भी बोल सकते हैं। और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। इट इज एब्सेंस ऑफ वाटर। हर सॉल्ट में थोड़ी देर के बाद मालूम पड़ जाएगा। ओके, इसको सोडा एच भी बोलते हैं, कॉमन नेम बोलते हैं सोडा एच, और केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अगर सोडियम कार्बोनेट के फिर से हम लोगों ने हीट किया तो क्या बन सकता है, सोडियम ऑक्साइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। बुक में यहाँ तक दिया हुआ है, प्रॉपर्टी लिख सकते हो। व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, इट फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हम लोग क्या बनता है, वाटर बनता है। इट इज ए काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन किस टाइप का डिकम्पोजिशन, बाय यूजिंग व्हाट, हीट। तो इट इज थर्मल व्हेन बेकिंग सोडा इज थर्मल डिकम्पोज, इट फॉर्म्स व्हाट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या बनता है हम लोग का, वाटर बनता है। वापस हम लोगों ने हीट किया तो क्या बनेगा हम लोग का, सोडियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेकिंग सोडा का यूजेस क्या होता है, क्या होता है, देखो पहले वाला यूज बहुत सिंपल है। हम लोग इसको किसके लिए यूज करते हैं, एज इन केस ऑफ दिस वी हैव सीन, इफ वी आर हीटिंग NaHCO3, if you are heating, it is forming what, Na2CO3 प्लस क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन रहा है हम लोग का, वाटर। अगेन इफ यू आर हीटिंग दिस सोडियम कार्बोनेट, अगर हम लोग वापस इसको हीट करेंगे क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड एंड क्या बनेगा हम लोग का, कार्बन डाइऑक्साइड। एज यू कैन सी हियर व्हिच इज प्रोड्यूसिंग, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूसिंग एंड सोडियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूसिंग ऑन हीटिंग। एज इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको ऐसे किसके लिए यूज किया जाता है, एज ए फायर एक्सटिंग्विशर के लिए इसको क्या यूज किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन और बेकिंग सोडा इज कैन बी यूज्ड एज ए व्हाट, फायर एक्सटिंग्विशर। क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज एंड फॉर्म्स व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फायर एक्सटिंग्विशर के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ओके, बेकिंग सोडा का एक यूज क्या हो सकता है, इसको फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और दूसरा यूज क्या हो सकता है, इसको हम लोग टूथपेस्ट में टूथपेस्ट में इसको यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को मतलब आफ्टर ब्रशिंग क्या टीथ वी यूज्ड टू फील व्हाट, शाइनी, मतलब हैप्पीडेंट वाला टीथ हो जाता है हम लोग को, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सोडियम। बेकिंग सोडा मतलब टूथपेस्ट में यूज किया जाता है, मतलब टूथ को मतलब वो मतलब शाइन मतलब वापस लाने के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, इट इज ऑल्सो यूज एट एंटासिड, हम लोग का मतलब एसिडिटी के लिए जो होता है ना, तो अंदर में इन केस ऑफ स्टमक वी नो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिलीज्ड बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ मतलब एसिड में हम लोग क्या वी यूज्ड टू फील आवर पेन, और इन टू रिलीव फ्रॉम दैट पेन वी यूज्ड टू यूज दैट बेकिंग सोडा एज एंटासिड, एज ए व्हाट, एंटासिड। तो बेकिंग सोडा कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एंटासिड। सबसे ज्यादा जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है वो है बेकिंग पाउडर, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग पाउडर को प्रोडक्शन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बेकिंग सोडा को। अभी देखो बेकिंग पाउडर का यूजेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल घर पे पकोड़ा बनाने के लिए बेकिंग पाउडर को चाहिए, घर में अच्छे से मतलब कुछ मतलब मिठाई वगैरह बनाने के लिए भी क्या बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, बेकरी में जिस तरह का ब्रेड बनता है, केक बनता है, सभी में किसका बेकिंग पाउडर का यूज किया जाता है। अभी क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज आफ्टर यूजिंग बेकिंग सोडा मतलब इनर पार्ट ऑफ द व्हाट केक इट फील्स व्हाट सॉफ्टी एंड द फ्लफी, मतलब थोड़ा फूल जाता है और सॉफ्ट भी होता है एंड सैंड भी होता है, थोड़ा अच्छे से स्मेल भी निकलता है। क्यों होता है अभी जानते हैं, चलो लेट्स बिगिन। कैसे बनाया जाता है, देखो पहले हम लोगों को किसके लिए हम लोगों ने कौन सा लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब बेकिंग पाउडर को, बेकिंग सोडा को लिया एंड इफ यू आर एडिंग बेकिंग सोडा विथ ए एडिबल एसिड मोस्टली टार्टरिक एसिड, एडिबल एसिड मोस्टली व्हाट, टार्टरिक एसिड को मिलाया जाता है किसके साथ, बेकिंग सोडा के साथ। एंड टार्टरिक एसिड का सिंबल क्या होता है, C4H6
C4O6। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा व्हाट इज द केमिकल व्हाट सिंबल ऑफ टार्टरिक एसिड C4H6O6। अगर हम लोगों ने दोनों को मिक्स किया तो ये वाला दोनों बनेंगे, क्या बनेगा हम लोगों का Na2C4H4O6। इसको बोलते हैं सोडियम टार्टरेट, सोडियम टार्टरेट, क्या बोलते हैं सोडियम टार्टरेट, सोडियम टार्टरेट बोलते हैं। एंड इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या बनेगा हम लोग का वाटर बनेगा। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल वी आर यूजिंग बेकिंग पाउडर। ओके, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बुक में कौन सा दिया हुआ है, इंस्टेड ऑफ दिस एसिड नाम दे दिया, मतलब क्या दे दिया H+, क्या दे दिया H प्लस इज इंडिकेटिंग वी आर एडिंग ए काइंड ऑफ व्हाट एसिड। तो पूरा वाला लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट लिख सकते हो NaCO3 प्लस H प्लस इज इंडिकेटिंग एसिड एज वी नो दैट एसिड रिलीजेस हाइड्रोजन आयन। तो इंस्टेड ऑफ दिस टार्टरिक एसिड यू कैन राइट व्हाट डायरेक्टली H प्लस एंड इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन राइट डायरेक्टली Na प्लस, क्योंकि ये सॉल्ट किसका है, सोडियम का क्या है, सॉल्ट है, सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम टार्टरेट, सोडियम टार्टरेट। डायरेक्ट लिख सकते हो H प्लस, इंस्टेड ऑफ दिस वन यू कैन राइट H प्लस, दिस वन यू कैन राइट Na प्लस, Na प्लस। बट एग्जाम में के लिए पूछा जाएगा तो व्हाट इज द सिंबल ऑफ टार्टरिक एसिड, ये वाला सिंबल है किसका, टार्टरिक एसिड का। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम टार्टरेट, ये वाला सोडियम टार्टरेट का सिंबल है। कभी आना चाहिए, मतलब एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा बट आना चाहिए। ओके, समझ में आया होगा। अभी क्यों मतलब वी आर कन्वर्टिंग दिस वन, बिकॉज इफ इट इज वी आर मिक्सिंग टार्टरिक एसिड इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम टार्टरेट। बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या हो जाता है, वो तो अंदर थोड़ा मतलब फ्लाफी मिलता है ना, अंदर केक का अंदर थोड़ा फ्लाफी होता है ना, थोड़ा फुल जाता है ना, बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका क्या यूज होता है, सोडियम टार्टरेट का। सोडियम टार्टरेट क्या होता है, अगर आफ्टर रिएक्टिंग जो बनता है सोडियम का सॉल्ट बनता है टार्टरेट, इसका सेंट बहुत अच्छा होता है। मतलब इसके लिए मतलब वी आफ्टर ओपनिंग ए केक वी यूज्ड टू फील व्हाट बहुत अच्छा स्मेल आता है, बिकॉज ऑफ दिस सोडियम टार्टरेट की वजह से वो वाला स्मेल आता है। ओके, और फ्लाफी क्यों होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया होगा। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, बेकिंग सोडा प्लस एसिड, एसिड मतलब कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड, और बनता है सोडियम टार्टरेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हम लोग वाटर वेपर तो निकल जाएगा। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज बिकॉज व्हिच मतलब केक का अंदर जो फुल रहा है मतलब फ्लफी हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। एंड स्मेल किसका आ रहा है, सोडियम टार्टरेट का, सोडियम टार्टरेट का। तो ये वाला मतलब कोई क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे बनता है, उसको हीट किया तो क्या होगा, उसको मतलब यूजेस क्या होता है, यूजेस क्या होता है। ओके, समझ में आया होगा इतना। तो एंटासिड के लिए यूज होता है, टूथपेस्ट में यूज किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसको यूज किया जाता है। अभी वन क्वेश्चन में कम इन माइंड, सर वी आर यूजिंग फॉर द फ्लाफीनेस, मतलब फ्लाफीनेस होने के लिए वी आर यूजिंग व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तो मतलब सिंपली मतलब NaCO3 को हीट करने से सिंपली अगर वी आर हीटिंग इट विल फॉर्मिंग व्हाट Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस व्हाट हम लोग का वाटर बन रहा है, वाटर बन रहा है। यहाँ पे भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो मतलब व्हाई वी आर एडिंग एसिड, व्हाई वी आर एडिंग एसिड। देखो मतलब बहुत अच्छा सवाल है ये वाला, पूछा जा सकता है कभी कभी, व्हाई वी आर एडिंग एसिड विद द फॉर द कन्वर्शन ऑफ बेकिंग सोडा टू बेकिंग पाउडर, व्हाई वी आर एडिंग acid though we are getting what in though we are getting carbon dioxide in the thermal decomposition of baking soda को थर्मल में डिकम्पोज किया तो ये वाला बन सकता है, बट व्हाई वी आर कन्वर्टिंग इनटू बेकिंग पाउडर, बिकॉज देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लाफीनेस हो जाएगा मतलब फुल जाएगा अंदर, बट बिकॉज ऑफ दिस सोडियम कार्बोनेट की वजह से मतलब हम लोग यूज नहीं कर पाते, बिकॉज इसके वजह से मतलब वो टेस्ट क्या हो, बिटर टेस्ट, जो सब्सटेंस में इसको यूज किया हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका टेस्ट हो जाएगा बिटर। दैट्स व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस रिएक्शन, वी आर कन्वर्टिंग द बेकिंग सोडा टू बेकिंग पाउडर एंड देन वी आर यूजिंग। समझ में आया होगा। बेकिंग सोडा डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, बेकिंग पाउडर का यूज कर रहे हैं बाय कन्वर्टिंग टू फ्रॉम बेकिंग सोडा टू बेकिंग पाउडर। आफ्टर कन्वर्टिंग बेकिंग सोडा टू बेकिंग पाउडर वी आर यूजिंग दिस व्हाट आवर बेकिंग पाउडर। ओके, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ये वाला मतलब इस सोडियम कार्बोनेट स्टेज देयर बिकॉज इसके वजह से सो टेस्ट क्या हो जाता है, बिटर टेस्ट हो जाता है, इसीलिए वी आर कन्वर्टिंग टू बेकिंग सोडा टू बेकिंग पाउडर। किसी भी क्वेश्चन यहाँ से अगर पूछा जाए, एग्जामिनर से पूछेगा तो इसके अंदर से पूछेगा, बाहर कोई सवाल नहीं आएगा। ओके, एज मतलब मेरे को मतलब जितना आता है मतलब बेस्ट आएगा। ओके, अब मतलब अच्छे से देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे कैसे होता है, फिर डाउट देना। ओके, अभी मतलब सेकंड यूज किसका आता है, मतलब अभी सेकंड जो मतलब हम लोग जिसके बारे में बातें करने वाले हैं, होप ये वाला समझ में आया होगा। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू बैक अगेन। ओके, अभी सेकंड बातें करने वाले हैं वॉशिंग सोडा के बारे में बातें करने वाले हैं, वॉशिंग सोडा के बारे में बातें करने वाले। नाउ बिफोर स्टार्टिंग वॉशिंग सोडा कुछ चीज जानना जरूरी है। वाटर ऑफ इसके बारे में, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है।
अभी क्या होता है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एवरी सॉल्ट कंटेन सम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सब स्पेसिफिक मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। मोलिक्यूल्स ऑफ किसी भी अगर सॉल्ट को ढूंढ लो तो उन सॉल्ट में क्या मिल जाएगा, कुछ अमाउंट क्या मिल जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। सॉल्ट मतलब वाटर मोलिक्यूल मिल जाएगा। किसी भी सॉल्ट को ले लो, उन सॉल्ट में मैक्सिमम क्या होता है, मोस्टली केसेस क्या होता है, उन सॉल्ट में कुछ मोलिक्यूल क्या वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसको, इसीलिए उन सॉल्ट को बोलते हैं मतलब हाइड्रेटेड सॉल्ट। उन सॉल्ट को जिसके अंदर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या होता है मतलब वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। एंड द नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन दैट सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया। किसी भी सॉल्ट को अगर कुछ सॉल्ट में ऐसा होता है मतलब दे कंटेन स्पेसिफिक नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल विद देम, एज दे आर कंटेनिंग वाटर मोलिक्यूल विद देम दिस सॉल्ट्स आर नोन बाय हाइड्रेटेड सॉल्ट। उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। एंड नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखो मतलब एक अच्छा सा एग्जांपल ले सकते हो, कॉपर सल्फेट CuSO4 में क्या होता है, उसके अंदर 5 नंबर ऑफ क्या होता है वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, हमेशा फिक्स रहता है। ओके, किसी भी कॉपर सल्फेट ले लो, अगर उसका कलर क्या है, ब्लू कलर है तो कॉपर सल्फेट का एक्चुअल कलर क्या है, ब्लू कलर है। क्यों ब्लू होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस 5H2O। एंड इसके लिए कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट बिकॉज इट कंटेन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल विद देम, वाटर मोलिक्यूल इन इट, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल इन इट। एंड उसी मतलब कितना नंबर वाटर मोलिक्यूल है, 5, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कितना नंबर, व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, 5। ओके, किसी और ले सकते हो क्या, यस फेरस सल्फेट का कितना होता है, 7 होता है। कलर क्या होता है, ग्रीन। दिस ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ दिस नंबर ऑफ प्रेजेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल। अगर हम लोगों ने हीट किया तो क्या बनेगा, दिस अमाउंट ऑफ वाटर विल वेपर, या वाटर क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा। एंड सॉल्ट का कलर क्या हो जाएगा, इसका अगर कॉपर सल्फेट ले लो तो कलर क्या हो जाएगा, ग्रे व्हाइट कलर हो जाता है, ग्रे व्हाइट कलर बन जाता है बिकॉज वाटर मोलिक्यूल खत्म, वाटर मोलिक्यूल वेपर हो जाता है। अगर वी आर एडिंग मोर वाटर, अगर आफ्टर कन्वर्टिंग दिस इफ वी आर एडिंग वाटर प्लस हम लोगों ने अगर वाटर ऐड कर दिया तो कलर वापस क्या आ जाएगा, ब्लू कलर आ जाएगा बिकॉज वाटर मोलिक्यूल उनके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे। ओके, देखो बहुत अच्छा आसान तरीका होता है। किसी भी सॉल्ट में अगर क्या होता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, उसी सॉल्ट को बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। एंड जितना अमाउंट नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सेम हियर, कॉपर सल्फेट 5H2O, कॉपर सल्फेट का हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट, उसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। सिंपली बोलते हैं कॉपर सल्फेट, बस उसको एक्चुअल में क्या बोल सकते हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा फॉर 5 एंड हाइड्रेट फॉर व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस वाटर। इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट बिकॉज इसमें कितना नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल, 7 नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल होता है। तो एज वी आर सीइंग, बिकॉज ऑफ इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, पूरा को बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। एंड दिस हाउ मेनी वाटर मोलिक्यूल, 5, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम लोगों ने हीट किया तो क्या बनेगा, ये वाटर मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, दिस वाटर मोलिक्यूल विल गो अवे। दिस इज द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आया होगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सॉल्ट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम लोगों ने दोबारा वापस में वाटर ऐड कर दिया उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। समझ में आएगा। अगर वी आर रिमूविंग द वाटर, अगर हम लोग वाटर को रिमूव कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम लोग दोबारा उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। तो देखो आसान तरीका होता है, किसी भी सॉल्ट में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल होता है, अब उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट, और उसी सॉल्ट नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कि दो मतलब कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 5 वाटर मोलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस। फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 7 वाटर मोलिक्यूल इन इट। अगर वाटर का कॉपर सल्फेट को हीट किया तो क्या हो सकता है, तो इट विल लूज ऑल द वाटर मोलिक्यूल एंड द कलर क्या हो जाएगा, ब्लू से ग्रे व्हाइट हो जाएगा बिकॉज वाटर मोलिक्यूल वेपर हो जाएंगे। उस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। अगर दोबारा उसमें वाटर डाल दिया तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर वापस आ जाएगा बिकॉज वाटर मोलिक्यूल विल ऐड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रिस्टलाइजेशन। इतना समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, तो वॉशिंग सोडा के बारे में जब आप बातें करने वाले तो हम लोग इसको जानना जरूरी है। वॉशिंग सोडा मतलब कहाँ से बनता है, वॉशिंग सोडा सी इफ वी आर हीटिंग NaHCO3 को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। इफ वी आर हीटिंग NaHCO3, आफ्टर हीटिंग व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा हम लोग का, वाटर बनेगा। कितना में क्या बनेगा, NaHCO3। हम लोग अगर हीट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर।
सी दिस सोडियम कार्बोनेट, इसको पहले बताया था मैंने, क्या बोलते इसको, सोडा एच, सोडा एच। एनहाइड्रस को क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस, इट इज नॉट कंटेनिंग एनी अमाउंट ऑफ वाटर इन इट, सब वाटर तो वेपर हो गए बिकॉज हम लोग क्या हीट कर रहे हैं। अगर दिस सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्स हियर इफ वी आर एडिंग, जो सोडियम कार्बन यहाँ पे बन रहा है उसको हम लोग अगर ले ले, और इफ वी आर एडिंग वाटर, इफ वी आर एडिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जो सोडियम कार्बन वहां पे सोडा वहां पे बन रहा है उसको हम लोगों ने ले लिया, एंड वी आर एडिंग वाटर, हम लोगों ने अगर वाटर ऐड किया तो क्या बनेगा, Na2CO3 10H2O and see we are adding water, what to recrystallize. Here what happened, crystallization done. What happened done, crystallization we have done. Here we are adding water, as we are adding water, so this is called what, recrystallization, and the recrystallization of sodium anhydrous sodium carbonate gives us our washing soda. Simple है, washing soda बोलते हैं इसको। What is the, इसका जनरल नेम क्या होता है, washing soda, and मतलब केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका फॉर 10, कितना हाइड्रेट है यहाँ पे 10 है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं इसको, एज इट इज कंटेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उल्टा क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हैव इन सोडियम कार्बोनेट, तो कितना है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ है। और इसका प्रोसेस कैसे बनता है, बाय रिक्रिस्टलाइजेशन, एज वी आर एडिंग वाटर, हम लोगों ने यहाँ पे वाटर खत्म कर दिया था, वी आर एडिंग अगेन वाटर, तो एज वी आर एडिंग अगेन वाटर, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्रिस्टल, वाटर को हटाने के लिए क्रिस्टलाइजेशन, वाटर को रिवर्स लाने के लिए क्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स व्हाट, एंड वॉशिंग सोडा समझ में आया होगा अच्छे से। तो वॉशिंग सोडा में बहुत सारा यूजेस होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है, मतलब बोरक्स बनाने में इसको क्या यूज किया, बोरक्स फैक्ट्री में इसको क्या यूज किया जाता है, बोरक्स फैक्ट्री में इसको यूज किया जाता है, मतलब ग्लास फैक्ट्री में इसको क्या यूज किया जाता है, पेपर फैक्ट्री में इसको यूज किया, पेपर फैक्ट्री ग्लास फैक्ट्री में इसको यूज किया जाता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए इसको यूज किया जाता है, एंड सबसे अच्छा यूजेस होता है मतलब वो बोरक्स फैक्ट्री में इसको यूज होता है। ओके, यूज सीखना पड़ेगा, 2-3 एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो वॉशिंग सोडा हम लोग का हो गया। अभी लास्ट है हम लोग का कौन सा, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोगों ने देखा हुआ है, मतलब किसी भी अगर किसी आदमी का बोन फ्रैक्चर हो गया तो डॉक्टर क्या करते हैं, बोन को मतलब ज्वाइन करने के लिए कुछ यूज करते हैं, प्लास्टर टाइप को यूज करते हैं, उसको ही बोलते हैं क्या हम लोगों का, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोलते हैं। अब इसका रिलेशन मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से साथ है। आता कैसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, बनता है मतलब जिप्सम से। किससे बनता है, जिप्सम से। जिप्सम क्या मतलब सिंबल क्या होता है, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को मतलब इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, उसका मतलब कॉमन नेम है क्या, जिप्सम। कॉमन नेम क्या होता है, जिप्सम, और उसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, एज इट इज कंटेन 2 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम लोगों ने मतलब क्या किया, कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम को हीट किया 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पे अगर हम लोगों ने हीट किया, अप टू मतलब डिग्री पे लिया तो 150 डिग्री सेल्सियस में हम लोगों ने अगर हीट किया तो 150 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम लोगों ने हीट किया, और अगर टेम्परेचर यहाँ पे कितना है 373 केल्विन से अगर हम लोगों ने हीट किया तो क्या हो जाएगा, वाटर विल गो अवे, मतलब वाटर तो खत्म, वेपर होने लगेगा, एंड इट विल फॉर्म व्हाट, CaSO4.half H2O, दो मतलब दो में से आधा रहेगा, बाकी डाई क्या हो जाएगा पूरा, बाकी रफ सब क्या हो जाएगा 1.5 क्या हो जाएगा, मतलब 2 में से 1.5 रहेगा वाटर मॉलिक्यूल विल इवेपोरेट गो अवे, एंड बाकी वाटर मॉलिक्यूल विल स्टे विद द कप, इसीलिए आप ज्यादा नहीं हीट करेंगे। ओके, थोड़ा बहुत हीट करने के बाद हम खत्म, पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। इसको ही बोलते हैं, ये वाला जो बना हम लोगों का कैल्शियम सल्फेट हेमी, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी फॉर व्हाट, हाफ। ओके, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको ही बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम ऑन हीटिंग अप टू 373 केल्विन ऑन 150 डिग्री सेल्सियस गिव्स व्हाट, CaSO4.half इसको ही बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और सिंपली बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम लोगों ने वन थिंग इज दैट, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका बोलते हैं, CaSO4.half H2O। अगर हम लोगों ने मतलब अगर इसके साथ वाटर ऐड किया तो बनेगा क्या हम लोगों का, CaSO4.2H2O, मतलब प्लास्टर पेरिस से क्या बन जाएगा हम लोगों का,
जिप्सम बन जाएगा। क्या बन जाएगा हम लोगों को? जिप्सम। इसको ही बोलते हैं पीओपी, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? जिप्सम। हम लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत सारा देखा सीलिंग में, मतलब फेक डिजाइन यूज किया जाता है ना, मतलब फैन को अगर सीलिंग में वॉल में हम लोगों ने आजकल मॉडर्न जमाने में क्या होता है, मतलब पहले जमाने में तो सीमेंट से बनाते थे, मतलब वो लोग डिजाइन करते थे। हम लोग अभी अब हम लोग मार्केट से मिल जाता है डिजाइन, और वो डिजाइन वाला हम लोग आके ला के क्या पेस्ट कर डायरेक्टली बैठा देते हैं। उसी डिजाइन बनता है किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। डिफरेंट वेरियस डिजाइन मिल जाता है हम लोग का। किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। टॉय किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। वेरियस स्टैचूज भी बनता है किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। ओके, बिकॉज वो बहुत हार्ड होता है। बोन फ्रैक्चरिंग के लिए डॉक्टर यूज करते हैं उसको, एज इट इज वेरी हार्ड। ओके, तो पीओपी, अगर पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर थोड़ा बहुत वाटर से मिल गया तो बन जाएगा क्या? जिप्सम। जिप्सम इज वेरी हार्ड, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग 150 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट कर रहे हैं। आफ्टर दैट इट इज ब्रेकिंग। तो अगर देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम बन गया तो वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। दैट्स वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमेशा ऐसे कंटेनर में रखते हैं जहां पे वाटर वेपर कभी ना घुसे, मतलब ऐसा कंटेनर में रखा जाता है जिसपे वाटर वेपर कभी ना घुस पाए। अगर वाटर वेपर घुस गए तो क्या हो जाएगा? इट विल रिएक्ट विद द पीओपी एंड इट विल फॉर्म व्हाट? प्लास्टर ऑफ जिप्सम। क्या बन जाएगा? जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस दिखता कैसे? लाइक पाउडर टाइप होता है, लाइक हम लोग मतलब किसी पाउडर, चॉक पाउडर की तरह होता है। अगर इफ दे आर रिएक्टिंग विद द वाटर इंस्टेंटली दे आर कन्वर्टिंग इनटू जिप्सम। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम आसान तरीका है, वाटर के साथ आसानी से मिक्स हो जाएंगे एंड बन जाएगा जिप्सम। अगर जिप्सम्स मतलब इफ यू आर कन्वर्टिंग जिप्सम्स टू प्लास्टर ऑफ पेरिस देन बहुत डिफिकल्ट होता है, मतलब बहुत सारा हीट देना पड़ता है बिकॉज ऑफ कन्वर्टिंग जिप्सम टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बन सकता है दोनों रिवर्सिबल, मतलब जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम आ सकते हैं, बट जिप्सम टू प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरी सिंपल। इसीलिए मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस को ऐसा कंटेनर में रखा जाता है जिसपे कभी वाटर वेपर ना घुस पाए। ओके, समझ में आया होगा? दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूजेस आ सकता है कभी कभी, और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो CaSO4 डॉट जिप्सम को अगर हम लोगों ने 373 केल्विन तक टेम्परेचर तक हीट किया तो बन जाएगा CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कॉमनली इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। एंड और अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों, मतलब ऐसा क्यों, व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केप्ट अंडर such container where water vapor cannot enter, because as if plaster Paris react with the water it will form gypsum, and gypsum is very hard, that's why मतलब हम लोग ऐसे कंटेनर में रखते हैं जहां वाटर वेपर ना घुस पाए। ओके, तो यहाँ से कोई इतना क्वेश्चन बन सकता है। एंड यही हम लोगों ने पार्ट 6 था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। 2-3 क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन यहाँ से हर वक्त मतलब पूछा जाता है एग्जाम पे, तो अच्छे से देखना, और अच्छा लगे तो शेयर, और सबके साथ दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो। ओके, बाय बाय, सी यू ऑन नेक्स्ट पार्ट, बाय बाय।